have been looking at these 7 churches in Asia Minor. और हम इन 7 कलीसियां को जो एशिया माइनर में पाई जाती हैं हम उनके विषय में देख रहे हैं इन दिनों में. And the Lord Jesus Christ appeared to Apostle John. और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन प्रेरित यूहन्ना ने पाया. And through John, Jesus was addressing these 7 churches in the Asia Minor. और यूहन्ना प्रेरित के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं को जो एशिया माइनर में हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं. And we have looked at 5 churches in the past. और पिछले समय में हमने कम से कम 5 कलीसियाओं को देखा. And today we shall be looking at number 6 church, the church in Philadelphia. और आज हम 6ठे कलीसिया के विषय में देखेंगे जो पाई जाती है फिलाडेल्फिया में. But as you have seen, most of these churches have these common threads running through each letter. और जैसा आपने देखा होगा पिछले समय में भी कुछ समानताएं हैं इन पत्रों में जो पाई जाती हैं. And this church, Philadelphia, that we are going to look at today, और ये 6ठा भाग है जो हम आज देखेंगे. the church in Philadelphia was about 40 kilometers south of Sardis, the church that we looked last time. और फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है करीब 40 किलोमीटर दक्षिण में है सरदीस की कलीसिया से. The main theme of the letter to the church, और जो खास शीर्षक है इन कलीसियाओं को जो खत लिखा गया और इस खास तौर से इस कलीसिया के लिए, to the church in Philadelphia, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए, is Jesus's encouragement प्रभु यीशु मसीह उनको उत्साहित कर रहे हैं to hold fast to the faith that they had. कि जो उनके पास विश्वास है उसको वो स्थिरता से थामे रहें. And it is found in the book of Revelation chapter 3. और ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय में and verses 7 to 13. उसकी 7 आयत से 13 आयत तक. If anybody could kindly read these verses, that will be great. Amen. May the Lord bless the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. The first thing, पहली बात in this letter, जो हम इस पत्र में देखेंगे, it was written to the church in Philadelphus or Philadelphia as we know it today. और जैसे आज हम जानते हैं फिलाडेल्फिया, इस कलीसिया को ये पत्र लिखा गया. And it wasn't very far from Sardis. और ये ज़्यादा दूर नहीं था सरदीस की कलीसिया से. And the word Philadelphia in those times and today also in Greek language means और ग्रीक भाषा में फिलाडेल्फिया का अर्थ है brotherly love. भाईचारे का प्रेम. And it is used about 7 times in the scriptures. और पवित्र शास्त्र में इसको कम से कम 7 बार लिया गया. But only here in the book of Revelation, this word is used for the name of a city. पर केवल इस पुस्तक में केवल इस जगह पर इस नाम को फिलाडेल्फिया के नाम को जो है इस शहर के लिए लिया गया, फिलाडेल्फिया के लिए. It's not a big city. ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है. By the way, this is in Turkey and even to this day there is a church in Philadelphia. और ये टर्की में है और आज के दिन भी यहाँ पर एक कलीसिया है फिलाडेल्फिया की. But these are the ruins of the churches and the buildings of Philadelphia. और लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फिलाडेल्फिया की इमारत के कुछ ruins दिखाई दे रहे हैं. What do we learn from this letter इस पत्र से हम क्या सीखते to the church in Philadelphia? और ये जो कलीसिया को ये पत्र लिखा गया, that Jesus reveals to them His particular side, His characteristics that were needed for the church in Philadelphia. और कलीसिया जो फिलाडेल्फिया की है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चरित्र का एक हिस्सा उनको आज बताते हैं. In verse 7, 7वीं आयत में Jesus says, to the angel of the church in Philadelphia write. यीशु कहते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख. And by whom? और किसके द्वारा? The words of the Holy One. और वो जिसके शब्द है जो पवित्र है. The true one. जो सत्य है. And who has the keys of David. जिसके पास दाऊद की कुंजी है.
And the one who has the keys of David, और जिसके पास दाऊद की कुंजी है, he can open and no one will be able to shut. वो खोल सकता है लेकिन उसको कोई बंद नहीं कर सकता. And what he who shuts, and this one who has the key, if he shuts, no one can open. और बंद किए, इसके द्वारा बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. So in the adjectives used for Jesus Christ in this verse to the church in Philadelphia, और जिस शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का विवरण दिया गया है कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए, notice that both the adjectives are preceded by a definite article, the Holy One, the True One. और हर एक शब्द को एक खास शब्द के द्वारा बताया गया है कि वो पवित्र है, केवल वो पवित्र है, केवल वो सत्य है. And that means there are not very many holy ones, or if you have the holy ones that you are looking, you find there is the Holy One. और यदि कहीं कहीं और कोई पवित्र है या कहीं और कोई सत्य है, तो वहां पर एक है जो केवल सबसे महान, पवित्र और सत्य है. This is a language of the Old Testament. ये पुराने नियम की भाषा है. The terms that were used for God, Yahweh, the Creator. और ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए गए जो यहोवा है, जो रचयिता निर्माण करता है. He is the only Holy One. वही तो केवल एक पवित्र है. He is the only true one. वही तो एक सत्य वाला है. Apostle John is now using the same words to describe Jesus Christ. और यही वो शब्द है जो प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर यहोवा के शब्द को प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहा है. You remember John is the one also in his gospel. और आपको याद होगा कि ये यूहन्ना प्रेरित ने अपने ही सुसमाचार में He begins by this saying that in the beginning was the word. और अपने सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो कहते हैं कि आदि में शब्द था. And the word was God. आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था. He was in the beginning with God. वही तो परमेश्वर के साथ था. All things were made through him. That means he is the creator God. सब वस्तुएं उसके द्वारा उत्पन्न हुई, वही तो रचयिता परमेश्वर है. And without him was not anything made that was made. और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ जो उत्पन्न हुआ किया गया. And then he says the same thing, that this God became flesh and dwelt among us. और फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा कि यही वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में डेरा किया. That was the Lord Jesus Christ. यही तो है प्रभु यीशु मसीह. I don't know how can people today still believe the nonsense that Jesus Christ is not God. People like Jehovah's Witnesses and Mormons and many other cults today still preach and teach that Jesus Christ is different from God Yahweh. और मैं अभी भी सोच नहीं पाता हूँ कि कैसे इतना स्पष्ट लिखने के बाद कुछ लोग, कुछ कल्ट जो है वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते. How can you apply the terms that were used exclusively for God Yahweh in the Old Testament to Jesus Christ? और आप इन शब्दों को कैसे नकार सकते हैं जो परमेश्वर यहोवा के लिए पुराने नियम में, और वही यहोवा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए नए नियम में दिए गए. And these descriptions of the Lord Jesus Christ, और ये जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहे गए शब्द हैं, they are very appropriate to the church in Philadelphia. और ये शब्द बिल्कुल सही है कलीसिया के लिए जो फिलाडेल्फिया में है उनके लिए. Remember the way in all of these letters, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से ये पत्र लिखे गए, how Jesus reveals himself यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, is totally relevant and contextual to the situation that he found in each church. और हर एक वो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं हर एक कलीसिया के लिए, वो उनकी जरूरत के मुताबिक है कि वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं. This church was found to be a true and holy one. ये जो एक कलीसिया थी फिलाडेल्फिया की, ये एक सच्ची और एक पवित्र कलीसिया मानी जाती है. This is a church where Jesus didn't find anything to rebuke them.
और ये एक ऐसी कलीसिया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को कोई बात ऐसी नहीं पाते इनमें जिसके लिए उनकी आलोचना करें। They were walking in the truth and they were living a holy life. वो सच्चाई पर चल रहे थे और वो पवित्र जीवन बिता रहे थे। And therefore Jesus addresses them. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे इस प्रकार बातचीत करते हैं, The true and holy one कि जो पवित्र और सत्य है is who you want to hold on to. वो ही है जिसको तुम थामे रहना What चाहते you हो। what you have received, वो जो तुमने पाया और जो तुम्हारे पास है, what made you holy, जिसने तुम्हें पवित्र बनाया, what made you righteous, जिसने तुम्हें धर्मी ठहराया, that you need to continue to hold on to. उसी को पकड़े रहो, थामे रहो, उसमें बने You रहो। don't need to look here and there, तुमको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, because the one, the only one, the holy one and the true one you already got. क्योंकि तुम्हारे पास तो वो पवित्र जन है, तुम्हारे पास तो वो सत्यता है। And this also means इसका अर्थ ये भी है that the holy one कि जो पवित्र है is not something that he is wearing as a robe, ये इस प्रकार से नहीं है कि वो एक प्रकार का उसका चोगा पहने हैं, but this is his essential character. परंतु ये तो उसका एक मुख्य चरित्र He है। is made of holiness. वो तो पवित्रताई से बना What हुआ है, defines holiness is what Jesus Christ is. और जो पवित्रता की परिभाषा है वही तो यीशु है। So there is no purity that you can imagine without Jesus Christ. कोई ऐसी शुद्धता पवित्रता है ही नहीं जिसको आप प्रभु यीशु मसीह के बिना मान सकते हो। In God, all the standards of purity are found, and that's what Jesus Christ is. और परमेश्वर पिता में जो पवित्रता और शुद्धता है वही तो यीशु मसीह में पाई जाती है। He shares God's purity. वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की शुद्धता को शेयर करते हैं। And it is not just when he says it, he is the true one. और जब वो कहते हैं कि वो सत्य वाला है, सत्यवादी है, It means that it is not just in appearance or in names. उसका मतलब ये है कि वो केवल दिखावे के लिए या नाम के लिए नहीं It's है, not just by resemblance to God, और इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से मेल खाता है, But पिता परमेश्वर की तरह दिखता है, but everything that God is. परंतु हर एक वो बात जो परमेश्वर स्वयं है, Everything that makes God pure and holy. हर एक बात जो परमेश्वर को पवित्र और शुद्ध बनाते हैं, That very corresponding thing is found in our Lord Jesus Christ, the Savior. और यही वही बातें हैं, वही चरित्र है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धारकर्ता उसमें पाई जाती है। In his name, उसके नाम में, in his nature, उसके स्वभाव in में, his character, उसके चरित्र में, in whatever he is made of, और जो कुछ भी वो बनाया हुआ है, जिससे बना है, his substance उसका जो सब्सटेंस है is holy, वो पवित्र है, is pure वो शुद्ध है and true. और सत्य है। So the whole thing that you and I talk about the Lord Jesus Christ is actually emanating from God himself. He is the true God and he is the true Holy One. और इसलिए जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं वो परमेश्वर से निकली हुई है जो पवित्रता है और जो सत्यता है। Therefore, इसलिए because he is the only one, क्योंकि यही तो वो है, he is the Holy One, वही तो पवित्र he है, is the true one, वही तो सत्य है, he is the pure one, वही तो शुद्ध है, he can be trusted. उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You may not be able to trust any politician, you may not be trust any other human being, and they will always disappoint you. आप किसी राजनीतिक अगुवे पर या किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देगा। But there is the Holy One. परंतु वहाँ एक पवित्र There जन is है, the true one. लेकिन वहाँ एक सत्य जन There है, is the faithful one. वहाँ एक भरोसेमंद जन है, There is only one living God. वहाँ केवल एक जीविता परमेश्वर है। As the psalmist was thirsty for the living God, जैसे भजनकार एक सच्चे जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहा है, we find that only in the Lord Jesus हालेलुया, Christ. हम उसे केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पा सकते So you can be sure, 101% sure, हैं। आप 101% आप इस बात से पूरी तरह से श्योर हो that सकते you हैं can trust Him always. कि आप हमेशा उस पर भरोसा रख सकते And हैं, then you can keep His word, because whatever is in His word about Him is true. आप उस शब्द को लेकर थाम सकते हैं क्योंकि जो भी उसका शब्द है वो सत्य है। People will give you word लोग आपसे वाचा and they बांधेंगे will forget about it.
लोग वायदा करके भूल जाते हैं। People will promise you help आपको मदद प्रॉमिस करेंगे लोग, and they will forget about it. वो भूल भी जाएंगे। People actually pledge something and they never accomplish it. लोग प्लेज करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन उसको कभी पूरा नहीं करते, मानते नहीं। This is not who Jesus Christ is, my dear friends. मेरे मित्रों, ऐसा मेरा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You can trust him, you can keep his word. आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसके शब्द को पूरी तरह से उसको मान सकते हैं। The third description of the Lord Jesus Christ और तीसरा जो डिस्क्रिप्शन है प्रभु यीशु मसीह का to the church in Philadelphia, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए, that he has the keys of David. कि उसके पास दाऊद की कुंजी है, And he who opens and no one will shut, and who shuts and no one will open. जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। This is a figure actually taken from the book of Isaiah, और ये जो शब्द है ये यशाया की पुस्तक से लिया गया, chapter 22 and verse 22. If somebody can find it quickly, kindly read it. Chapter 22, verse 22 of the book of Isaiah. और ये पाई जाती है यशाया के 22 अध्याय और उसकी 22 आयत में। Okay, so that was a verse for David, ये शब्द दाऊद के लिए दिया गया था, King David, राजा दाऊद के लिए, but this is also a prophecy परंतु ये एक भविष्यवाणी भी है that was ultimately fulfilled जो कि बाद में जाके पूर्ण हुई in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में। And the thing is that the key or the royal key to the household or the kingdom of David, और ये जो कुंजी है जो राजघराने की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है दाऊद के घराने की, it signifies इसका महत्व ये है authority, अधिकार, power, सामर्थ and the legal rights. और कानूनी राइट्स, Authority of a king. राजा का अधिकार। Jesus Christ is the king after David. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो राजा है जैसा दाऊद राजा था पुराने नियम में। As David could shut people out of his kingdom and open doors of his kingdom and power and had power and authority, और जैसे राजा दाऊद अपनी कुंजी के द्वारा, क्योंकि उसके पास अधिकार था, वो लोगों को अपने दरबार से बाहर रख सकता था या उनको आने का अनुमति दे सकता था, through Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा we are ushered into the kingdom of God. हालेलुया। हमको ये सौभाग्य दिया गया है कि हम परमेश्वर के राज में उसके द्वारा जा सकते हैं, Because it is the kingdom, क्योंकि ये एक राज्य है। Jesus is the king, यीशु राजा है, he has the authority, उसके पास अधिकार है, has the power उसके पास ये सामर्थ्य to है let people into the kingdom कि वो लोगों को अपने राज्य में आने दे or to keep people out of the kingdom. या लोगों को अपने राज्य से बाहर रखे। But what I find very interesting, परंतु बड़ी दिलचस्प बात जो मैं यहाँ पाता the हूँ, one who has the power and the authority, जिसके पास सामर्थ और अधिकार है, the first thing that he does, पहली बात जो वो करता है, he doesn't close for people. वो लोगों के लिए बंद नहीं करता He था, doesn't close and shut things. वो बंद करके बिल्कुल लोगों को अलग नहीं कर The देता। first thing that he does, पहली बात जो वो करता he है opens. वो खोलता है, He opens the doors वो द्वार को खोलता है for those who are not worthy, जो इस लायक नहीं है, for the Gentiles, अन्य जातियों के लिए, for all people on this earth. हर एक पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए। Remember, even in the temple in Jerusalem, आपको याद होगा यरूशलेम के मंदिर में not everybody just could go in and worship, कोई भी यूं ही आराधना के लिए जा नहीं सकता था, and especially into the holy place. खास तौर से पवित्र स्थान Only में a certain people can come in. कुछ ही लोग वहां जा सकते थे But अंदर, through the Lord Jesus Christ, लेकिन यीशु के द्वारा God has opened the doors for everyone to come to the living God. हालेलुया, परमेश्वर ने लोगों के लिए एक रास्ता बना दिया कि वो जीवित परमेश्वर के पास यूं आ सकते हैं। And this, the Lord Jesus Christ, our King after David, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा राजा है दाऊद राजा के बाद, has the keys उसके पास कुंजी है to open things that have been shut, रास्ता खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए उन जगहों पे जहां रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, to open kingdoms and countries and cultures for the Hallelujah. gospel. दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों के लिए, अलग अलग संस्कृतियों के बीच में रास्तों को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता निकाला। And also he shuts and no one can close
open those doors which he shuts. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन रास्तों को बंद भी कर सकता है और जो वो बंद करता है कोई भी उसको खोल नहीं सकता. In the same book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे earlier John wrote पहले यूहन्ना ने लिखा था in chapter 1 and verse 18, प्रकाशित वाक्य 1:18 में, and the living one, I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ. After his resurrection, उसके जी उठने के बाद Jesus has the keys of death and Hades, प्रभु यीशु मसीह के पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजी है. and he has the keys of David, उसके पास दाऊद की कुंजी है that is of the kingdom. जो कि उसके राज्य की है. Therefore, my dear friends, when he writes to the church in Philadelphia, what does he say? इसलिए मेरे मित्रों, जब वो इस कलीसिया को जो फिलाडेल्फिया की है जब उनको लिखते हैं तो वो क्या कहते हैं? Behold, I am opening a door for you. देखो मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलता हूँ. In chapter 3 of the book of Revelation, and when we come to verse 8, प्रकाशित वाक्य 3 और 8 में जब हम आते हैं, he says, I know your works, मैं तेरे कामों को जानता हूँ. and there is no negative works or negative things that he brings out about this church. और इस कलीसिया में कोई नकारात्मक बात नहीं देखता यीशु. So there is no word of rebuke, इसलिए कोई डांटने का शब्द नहीं. but he straight away gets into the business of encouraging them. और वो सीधे लोगों को उत्साहित करने के लिए, कलीसिया को उत्साहित करने के लिए बात करते हैं. And what is the first encouragement? पहला उत्साहन क्या है? He says, I have set before you an open door, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है which no one is able to shut. जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता. Why? Because I am the king. क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ. I have the authority. मेरे पास अधिकार है. I have the power. मेरे पास ये शक्ति है. And when I open, और जब मैं खोलूं, nobody can shut it. कोई भी बंद नहीं कर सकता. So friends, इसलिए मित्रों, through the church of Philadelphia, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के द्वारा the Lord is saying to the church here in Edmonton, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एडमंटन में इस कलीसिया को कह रहे हैं, to the church in Canada, कनाडा की कलीसिया के लिए, that I have set an open door for you, मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा है. and no one is able to shut it. उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता. An open door for preaching the gospel. रास्ता जो खुला हुआ है वो परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार का An है. open door to love the living Lord and to worship Him in Amen. the way that we want. एक ऐसा द्वार जो खुला हुआ है इस प्रकार से कि हम जिस भी प्रकार चाहते हैं परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं, जैसा भी हम But चाहते the हैं. question परंतु is, सवाल है, what are we doing about this open door? हम क्या कर रहे हैं इस खुले हुए द्वार के लिए? We do not know for how long will it be open. हमें नहीं मालूम कब तक ये द्वार खुला रहेगा. I know that you have but little power, the Lord says. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास सामर्थ थोड़ी सी है. That means to the churches today, He's saying, I know you do not have political power. और जो कलीसिया है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे पास इतना राजनीतिक अधिकार I नहीं know है. you are very few in number. मुझे मालूम है तुम बहुत ही कम हो संख्या में. I know you are not powerful enough. मुझे मालूम है तुम इतने सामर्थी भी नहीं हो. But what have you done? परंतु तुमने क्या किया है? He praises them वो उनकी तारीफ करते and हैं. says that yet, even though you are powerless, yet you have kept my word. और वो कहते हैं, जबकि तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. Yeah, you have not denied my name. तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है. Friends, you don't need power and authority and imperial or colonial power or military power to keep His word and not to deny His name. Hallelujah. हालेलुया. हमको मिलिट्री की सामर्थ या राजनीतिक सामर्थ या बहुत बड़ी सामर्थ की जरूरत नहीं है कि हम उसके नाम को यूं ही थामे रहे. So he says that, behold, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. और नबी आत्मा लिखा, देख मैं शैतान की उन सभा वालों को
तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा काम करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। And I will also keep you away because of your patient endurance. I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world. Amen. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. The next good thing about this church is there is no criticism for the Lord. Can you imagine Jesus didn't find anything to criticize them for? और बहुत ही अच्छी बात जो प्रभु यीशु मसीह के पास इस कलीसिया के लिए कोई आलोचना करने के लिए नहीं है। क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितनी सुंदर बात होगी कि कुछ भी आलोचना नहीं है इस कलीसिया के लिए। Out of the 7 churches, सातों कलीसियाओं में से only 2 churches were found where Jesus didn't have anything to rebuke them for. केवल 2 कलीसियां ऐसी थी जिनमें कोई भी ऐसी चीज प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पाई जिनके लिए उनको ताड़ना पड़े। Church in Smyrna, स्मरणा की कलीसिया के लिए, and now the church in Philadelphia. और दूसरी है कलीसिया फिलाडेल्फिया की। No indictments against them. कोई भी आलोचना नहीं उनके विरोध में। Instead, they were recommended, they were commended for their holiness and for the way that they were living. बल्कि उनकी तारीफ की गई, प्रशंसा की गई, क्योंकि जिस तरह से वो जीवन जी रहे थे वो पवित्र थी और बिना किसी गलत बातों के थी। So, fifthly, पांचवी बात, what does Jesus call them to action now when he doesn't find anything to rebuke them? जबकि प्रभु यीशु मसीह उनमें कोई भी बुरी बात नहीं पाते तो क्या ऐसा कार्य करने की बात प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं? It's a very positive thing. बहुत ही सकारात्मक। Chapter 3, verses 11 to 13. और वो हम बात पाते हैं 3 अध्याय की 11 से 13 आयत तक। I am coming soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। So you hold fast what you have. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। I am really encouraged by this word today. आज मुझे इस शब्द से बहुत आश्वासन मिलता Because है। these days I see many people are looking for newer things. क्योंकि इन दिनों मैं ज्यादातर देख रहा हूँ कि लोग नई नई बातों को देख रहे हैं। We live in a new age movement kind of days. और हम आज ऐसे दिन में जी रहे हैं जबकि लोग नई एज को ढूंढ रहे हैं। People get tired and exhausted by what they have very easily. और लोग बड़ी जल्दी थक जाते हैं उन बातों से जो उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। Now I love technology. मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है। But every year a new phone. लेकिन हर साल नया फोन, Every year a new technology. हर साल नई To टेक्नोलॉजी, adapt to that, उसके साथ उसको अडॉप्ट करना it's not easy. आसान नहीं है, But people love it. पर लोगों को अच्छी लगती है। In India, they have opened an Apple stores. In India, they have opened Apple stores now. और इंडिया में काफी एप्पल स्टोर्स खुल गए हैं। So there was a huge lineup recently in Mumbai at the Apple store because people wanted to lay hands on the new iPhone 16, I think now. और मुंबई में एक एप्पल स्टोर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पे शायद सबसे नया जो आईफोन था लोग उसको लेना चाहते थे। And so that's the tendency these days, and the same thing is found in churches. तो यही बातें हम पाते हैं जो आजकल कलीसियाओं में भी पाई जाती Tell हैं। me something new. मुझे नई चीज Tell बताओ, me a new revelation. मुझे नया प्रकाशन I बताओ। follow some people on social media and they will come live and they want to say, the Lord told me this new revelation. और मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पर, कई बार वो बोलते हैं मैंने एक नया प्रकाशन पाया। And when Jesus had the opportunity लेकिन जब यीशु के पास ये अवसर था to address the church कलीसिया से बातचीत करने का, that was holy, जो पवित्र था, that was walking in his ways, जो परमेश्वर के रास्तों पर चल रहा था, Jesus could have easily said, यीशु उनसे आराम से बोल सकते थे, look for new teachers, नए शिक्षकों को ढूंढो, look for new revelations, नए प्रकाशन को ढूंढो, look for new trends, नए ट्रेंड्स को ढूंढो, look for this new or that new. इस नए को या उस नए को ढूंढो। He didn't say any of those things. यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, Instead, Jesus said, बल्कि यीशु ने कहा, number one, पहली बात, I am coming soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ। That means unexpected time when you will not be prepared, I'll be there. इसका मतलब है कि जब कोई इस बात को सोचता नहीं होगा, अचानक से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। That means live in that anticipation that Jesus Christ is coming back.
लेकिन इसलिए ऐसी सोच में जियो ये जानकर के यीशु कभी भी आ सकते हैं। And when you live in that anticipation and hope of the return of Christ, और जब आप इस एंटिसिपेशन में जीते हैं और इस आशा में कि यीशु आने वाले हैं, hold fast to what you already have. तो उसको थामे रहो जो तुम्हारे पास पहले से What है। has made you holy? किस बात ने, जिसने भी तुम्हें पवित्र बनाया, What has made you follow the living Lord, the only true one and the holy one? और जिसके द्वारा भी तुमने इस जीवित सच्चे परमेश्वर को पहचाना और जानना और चलना शुरू किया, That gospel is sufficient for your salvation. वो सुसमाचार तुम्हारे उद्धार के लिए काफी है। You don't have to look for new things, तुम्हें नई चीजों के लिए ढूंढने की जरूरत new नहीं है। revelations, नए प्रकाशन के लिए, new religions, नए धर्म के लिए, new trends, नए trends new के लिए, preachers, new नए teachings. नए प्रचारकों के लिए, नए शिक्षकों के लिए। What is required of you is that what made you holy, what made you acceptable in my sight. और जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो ये कि कैसे तुम पवित्र बन गए, किसने तुम्हें मेरी आंखों के सामने ग्रहण योग्य बनाया। Just hold on to that केवल उसको थामे रहो and hold on to it fast. उसको बहुत ही दृढ़ता से पकड़े Because रहो, these new challenges and new teachings and new teachers will come. क्योंकि ये नई चुनौतियां, नए शिक्षक, नई शिक्षाएं तुम्हारे सामने आएंगी। It will make you difficult to hold on to what you already have. उसके द्वारा जो तुम्हारे पास पहले से है उसको पकड़े रहने में, स्थिर रहने में तुमको कमजोर करेगी। So my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, because he is the only true one, क्योंकि केवल वही तो एक सच्चा he परमेश्वर is है, the only one, the true holy one, क्योंकि वही तो एक पवित्र परमेश्वर है, he is the king वही तो राजा है, who has the authority, जिसके पास अधिकार who है, has the power, जिसके पास सामर्थ who है, is the savior, जो उद्धार करता who है, is the Lord, जो प्रभु है, who is the creator God. जो रचयिता परमेश्वर है। You and I don't need anyone else, मुझे और आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, anything else. किसी और भी बात की। But just hold on to this Lord Jesus Christ and you will be fine. हालेलुया। तुम केवल इस प्रभु यीशु मसीह को थामे रहो, पकड़े रहो और तुम ठीक रहो। Hold fast to his word. उसके वचन को स्थिर साथ थामे रहो Hold fast to the obeying of his word. और स्थिरता में उसके वचन को आज्ञा से मानते रहो। And you and I will be definitely fine until the return Hallelujah. of the Lord Jesus Christ. और इसके द्वारा हम बिल्कुल ठीक बने रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक। Even the Hebrew writer of Hebrew also says in chapter 3 and verse 6, इब्रानियों में जो लेखक है वो कहते हैं तीसरे अध्याय की 6ठी आयत में, but Christ is faithful, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, the Holy One, वो पवित्र है, the True One, जो सत्य है, the King and the Lord. वही तो राजा और प्रभु है, He is faithful, वही तो वफादार है, and we are his household. हम उसके घराने हैं। If in fact we hold firmly to our confidence and the hope we take pride in. और हम उसका घर है और हम यदि हम साहस पर, अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। Underline that verse in your Bibles, please. And whenever you feel lack of confidence and lack of hope and hopelessness, आप इस आयत को आप उसके नीचे रेखा खींच ले। जब भी आप आशा रहित होते हैं या किसी प्रकार से आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप इसको जानें। you can depend on the faithfulness of Christ the Lord. तो आप प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता पर निर्भर रह सकते हैं। And you can hold firmly to his faithfulness. आप उसकी वफादारी को पकड़े रह सकते, थामे रह सकते हैं। And our confidence not in ourselves, और जो कॉन्फिडेंस है वो हम हमारा अपना नहीं, but in him and the hope that we take pride in. लेकिन उसमें हम अपनी आशा और अपने विश्वास को थामे रह सकते हैं। So what about the warning and the promise to the church? इसलिए यहाँ पर क्या चेतावनी और क्या वायदा दिया गया? There is no warning. यहाँ कोई चेतावनी नहीं मिलती। Rather, the promise is that I will make you pillars in my temple. यहाँ कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन उनको एक वायदा दिया जाता है कि मैं तुमको मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। That means permanent eternal life. इसका मतलब अनंत जीवन। And then I will write the name of God और फिर मैं उसमें अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा, and the name of the city परमेश्वर के नगर का नाम, and the name of Yeshua the Lord Jesus Christ on you. और उस पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखूंगा।
And because of these things, और इन बातों के कारण the Lord Jesus Christ promises us eternal life. इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन का वादा देते हैं। Oh, how I wish that we could be like the church in Hallelujah. Philadelphia. मैं कैसे इस बात को समझता हूँ, चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया फिलाडेल्फिया के कलीसिया की तरह हो, That we would definitely be confident कि हम पूरी तरह से निश्चित रहेंगे that Jesus Christ, our Savior, is the only holy and true हालेलुया, one. कि प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक उद्धार करता है जो एक पवित्र और एक सच्चा खुदावंद है। And what does this Savior require of you and me today? और आज ये उद्धारकर्ता मुझसे और आपसे क्या चाहता है? That we will hold firmly to what we already have. कि हम जो हमारे पास अभी पहले से है उसको, विश्वास को स्थिरता से थामे रहें। So hold on to the faith in the Lord Jesus Christ, the holy and true one. इसलिए अपने विश्वास को, जो आपने प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र और सत्य है उसको माना है, उसको आप स्थिरता से थामे रहें। Despite persecution and suffering and pain, हर एक दर्द, सताव और परेशानी के मध्य में remember He has the keys आप याद रखें उसके पास कुंजी है, to open doors for you and me, आपके लिए द्वार खोलने के लिए और मेरे लिए, and to shut the doors that He doesn't want us to walk into. और उन द्वारों को बंद करने के लिए जिसमें वो नहीं चाहता कि हम चले जाएं। But let's also take courage to walk through the doors that the Lord may be opening for you and me, as long as they are open. और हमको वो साहस दे कि जो वो रास्ता हमारे लिए खोलता है हम उसमें चलने के लिए तैयार हों। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना